morning to all my viewers in the name of Lord Jesus Christ. देखने वाले तमाम नाजरीन को खुदावंद यसुम मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में हमारी पूरी टीम की तरफ से सलाम। Today's the topic of our message is on faith, आज के हमारे कलाम का عنوان ईमान पर है and we welcome you all in our season's fourth part. और हम आप सबको अपने सीजन की चौथी किश्त में खुशामदीद कहते हैं। And you haven't subscribed our YouTube channel yet, so please subscribe to it and also press the bell icon to get the latest notifications. और अगर आपने हमारे YouTube के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जाके सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नए से नए आने वाले कलाम को सुन सकें। Let's pray for our message. आए हम अपने कलाम के लिए दुआ करें। In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Almighty God, I thank you for this day that you have given us. ऐ मेरे प्यारे खुदा, मैं तेरा इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए शुक्रगुजार हूँ जो आज तूने हमें दिया है। Bless me and Elijah in this message. मुझे और सैमुअल को बरकत देना। We ask and receive in Jesus' name. Amen. सभी कुछ मांगते और पा लेते हैं खुदावंद के नाम में, आमीन। So, we have a sentence that always keep faith on God. हमारे पास एक जुमला है कि हमेशा खुदा में ईमान रखें, Because faith is the most powerful weapon that attaches us all the time with God. क्योंकि ईमान एक ऐसा हथियार है जो हर वक्त हमें खुदा से जोड़े रखता है। So, always have faith on God. तो हमेशा खुदा में ईमान रखें, Because faith is most powerful thing that keep us close to the God all the time. क्योंकि ईमान एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर वक्त खुदा से जोड़े रखती है, हमें हर वक्त खुदा के साथ रखती है। And it is also written in St. Mark chapter 11 verse 24. और ये मुकद्दस मरकज़ की इंजील उसके 11वें बाब और उसकी 24वीं आयत में भी लिखा है, Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Amen. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते यकीन करो कि तुमको मिलेगा और वो तुमको मिल जाएगा। This verse of St. Mark, मुकद्दस मरकज़ की इंजील की इस आयत में it is explained that हमें ये बताया गया है कि if you are asking something from God, अगर आप खुदा से कोई चीज़ मांग रहे हैं so have faith on God तो खुदा पर भरोसा रखें and believe that you have received it, और ईमान रखें कि आपको वो मिल चुका है and God will give you soon and soon on the perfect time. और खुदा जल्द से जल्द आपको वो चीज़ मुहैया करेगा दुरुस्त वक्त आने पर। And if you haven't seen God, so have faith on God, और अगर आपने खुदा को नहीं देखा तो फिर भी खुदा पर ईमान रखें, because it is written in St. John chapter 20 verse 29. क्योंकि ये मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब और उसकी 29वीं आयत में भी लिखा है, Jesus said to him, have you believed me because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet believe me. यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए। So today we say to you, have faith on God, तो आज हम आपसे ये कहते हैं कि खुदा पर भरोसा और ईमान रखें, because it is written that faith in God changes everything. क्योंकि ये लिखा है खुदा पर भरोसा सब कुछ बदल देता है। Will be more stronger and stronger. तब आपका ईमान मजबूत से मजबूत हो जाएगा। And if you are poor, so then have faith on God. अगर आप गरीब हैं तो खुदा पर भरोसा और ईमान रखें, And then you will also change to be rich by having faith on God. तब आप भी एक अमीर शख्स बन जाएंगे अगर आप खुदावंद में ईमान और भरोसा रखते हैं। Because our faith can move the mountains. क्योंकि हमारा ईमान पहाड़ों को भी हटा सकता है। So today we say to you all, तो आज हम आप सबसे कहते हैं, have faith on God खुदावंद पर ईमान रखें in every situation of your life. अपनी ज़िंदगी के किसी भी हालात में। God bless you all. खुदा आप सबको बरकत Let's दे। pray. आए हम दुआ करें। Almighty God, I thank you for this time that you have given us. ऐ मेरे प्यारे खुदा, मैं इस वक्त का तेरे शुक्रगुजार हूँ जो तूने आज हमें दिया है। Bless all the viewers who heard and saw this message. देखने वाले तमाम नाजरीन को बरकत देना। And we also pray for our Reverend Dr. Daniel Khadim, the founder of Rema Assemblies of Pakistan. और हम खसूसी तौर पर रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम रेमा असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान के फाउंडर के लिए दुआ करते हैं। He is in very critical situation. वो बहुत ही नाजुक हालात में हैं। Heal him
उसे बरकत देना। We have faith on you that you will heal him in the name of Lord Jesus Christ. हमें आप पर ईमान है कि आप उनको बरकत देंगे। ये सब कुछ मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। We ask and receive in Jesus' name. Amen. God bless you all. Amen. खुदा आप सबको बरकत दे।